ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ خوب دل لگا کر پڑھنا بیٹی، پورا گاؤں تمہارا ڈاکٹر بننے کا انتظار کر رہا ہے، بابا نے شفقت سے مسکان کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ جی بابا، میں آپ کے خواب کو ضرور پورا کروں گی اور دل لگا کر پڑھوں گی۔ مسکان کی آنکھوں میں جدائی کی نمی تھی، خیر نمی تو بابا کی آنکھوں میں بھی تھی۔ آج سے پہلے کہاں مسکان کو یوں انہوں نے اکیلا چھوڑا تھا۔ اس وقت وہ مسکان کو شہر کے سب سے بڑے ہاسٹل میں چھوڑنے آئے ہوئے تھے اور اب جدائی پر دونوں باپ بیٹی کے دل گھبرا رہے تھے۔ آپ خیر سے جائیے گا بابا، اور جاتے ہی مجھے فون کر دیجیے گا، مسکان نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تم اوپر جاؤ، ایسے اکیلے سڑک پر کھڑے ہونا اچھی بات نہیں، انجان شہر ہے، تم اندر جاؤ۔ بابا نے گاڑی میں بیٹھتے اسے نصیحت کی اور وہ بھی بابا کی گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی ہاسٹل کے اندر چلی آئی، اپنے کمرے میں آئی اور چند آنسو بہائے۔ جہاں نئی زندگی شروع ہونے کی خوشی تھی، وہیں گھر والوں سے جدائی کا غم تھا۔ لاہور کی افراتفری میں اپنے اکیلے ہونے کا بھی ڈر تھا۔ بابا جان نے لاہور کے سب سے بڑے ہاسٹل میں اس کی رہائش کا انتظام کیا تھا، ہر طرح کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے یہی سیکیور ہاسٹل مسکان کی زندگی بدل دے گا۔ کیسا ہاسٹل ہے جہاں سے کوئی پڑھنے کے لیے جاتا ہی نہیں؟ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے اور ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ آج میڈیکل کالج میں اس کا پہلا دن تھا اور وہ صبح 7 بجے اٹھ کر تیار ہو گئی تھی، لیکن اس کے کمرے کے علاوہ باقی سب کمروں کے دروازے بند تھے۔ ہر رات دیر تک باہر ہلچل ہوتی رہی تھی، اجنبی جگہ کی وجہ سے اسے نیند بھی دیر سے آئی، تو وہ بآسانی باہر سے لڑکیوں کے آتے کہے سن سکتی تھی۔ مسکان نے چادر لی، بیگ اٹھایا اور نیچے آ گئی۔ السلام علیکم میڈم، وارڈن کو سلام کیا جو بیٹھی اونگ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وارڈن نے سلام کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ ناشتہ کہاں ملے گا؟ مسکان کے سوال پر وارڈن نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ شیلف پر ناشتے کے برتن رکھے تھے، تازے ناشتے کی خوشبو نے اس کی بھوک چمکا دی۔ اس نے جلدی سے ناشتہ کیا اور باہر آ گئی۔ کالج کا آج کا پہلا دن تھا، وہ کسی صورت بھی لیٹ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ رکشے والا پہلے سے موجود کھڑا تھا، بابا جان جاتے ہوئے اس کی سواری کا انتظام بھی کر گئے تھے، اور پھر اس نے اپنے خوابوں کی منزل کی طرف سفر شروع کیا۔ کالج کا پہلا دن بہت اچھا تھا۔ آج زیادہ پڑھائی تو نہیں ہوئی، لیکن انٹروڈکشن ہوا تھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور اس کا بھوک سے برا حال تھا۔ وہ ہاسٹل آئی تو اس وقت ہاسٹل میں ہلچل محسوس ہوئی۔ مسکان نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ شام میں اس کی آنکھ کھلی تو ہاسٹل کی رنگینیاں دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ ہاسٹل کی شام بہت پر رونق ہوتی تھی، سب لڑکیاں باہر لان میں جمع ہوتی، کچھ تو تیار ہوتی، ارد گرد پھر رہی ہوتی۔ اس کی بھی 1-2 لڑکیوں سے دوستی ہو گئی۔ وہ اس 1 ماہ میں اس روٹین کی عادی ہو گئی تھی۔ سب لڑکیوں کی یونیورسٹی اور جاب کی ٹائمنگ مختلف ہوتی تھی، اس لیے سب اپنے اپنے ٹائم پر اٹھ کر چلی جاتی، اور ان میں سب سے پہلے مسکان جاتی تھی۔ ڈاکٹری کی پڑھائی کوئی آسان تو نہ تھی۔ باہر جب لڑکیاں بیٹھ کر گپے لگاتی تو مسکان پڑھ رہی ہوتی۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔ مسکان 9 بجے کے بعد کمرے سے نہیں نکلتی تھی، صبح اس کو اسائنمنٹ جمع کرانی تھی، اس لیے اب تک بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ جب دروازے پر کھٹکا ہوا، عموماً وہ دروازہ بند کر لیتی تھی، لیکن آج شاید وہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ کمرے میں صرف اسٹڈی لیمپ کی روشنی تھی، باقی تمام لائٹس بند تھی، اسی لیے آنے والے کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ کرن، تم ہو؟ مسکان نے نوٹس پر جھکے جھکے سوال کیا۔ بالوں کو میسی جوڑا بنائے، کھلے سے ٹراؤزر شرٹ میں، دوپٹے سے بے پرواہ وہ انہیں مارک سے اسائنمنٹ پوری کر رہی تھی۔ شہروز سکندر نے اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ اس کی گردن کے اطراف میں سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی، گولڈ کی نازک سی چین کے ہک میں کچھ بال الجھے ہوئے تھے، اور ایک پینسل بھی اس کے میسی جوڑے میں پھنسی ہوئی تھی۔ شہروز سکندر کا دل کیا وہ اس سراہی دار گردن کو چھوئے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے مسکان کے جانب بڑھا اور بغیر سوچے اپنی انگلی کی پوروں سے
मुस्कान की गर्दन की बैग को छुआ। खुरदरे लम्स पर मुस्कान झटका खाकर पलटी और अपने पीछे किसी लड़के को देखकर उसकी चीख निकल गई। ए चीखो मत, मुझे चीखो पुकार से उलझन है, शेरोज सिकंदर ने लड़खड़ाते लहजे में कहा और मुस्कान उसकी मौजूदगी से बुरी तरह डर गई। कौन कौन हो तुम? मुस्कान ने कांपते लहजे में पूछा। पता नहीं, तुम्हें देखकर मैं अपना नाम भी भूल गया हूं। शेरोज ने एक लम्हे में ही ऊपर से नीचे तक मुस्कान को देखा। मुस्कान ने जल्दी से कुर्सी पर से दुपट्टा उठाया और अपने गिर्द लपेटा। दफा हो जाओ यहां से। मुस्कान डर तो बहुत ज्यादा गई थी, फिर भी बहादुरी का मुजाहरा किया। कहां जाऊं? जन्नत तो यहां है, शेरोज सिकंदर ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा और मुस्कान की तरफ कदम बढ़ाए। वहीं खड़े रहो वरना जान से मार दूंगी, मुस्कान ने भराए हुए लहजे में धमकी दी। लो मार दो जान से, शेरोज ने दोनों हाथ फैलाकर कहा और मुस्कान की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा। मुस्कान का हाथ कैसे बालों में फंसी पेंसिल पर गया। उसने पेंसिल खींची और पेंसिल का सिक्का पूरी कुव्वत से शेरोज के हाथ में चुबा दिया। चुभन के एहसास पर शेरोज का नशा थोड़ा उतरा। उसने खूनख्वार नजरों से मुस्कान को देखा। शेरोज के चेहरे पर तकलीफ के आसार वाज़ेह थे। मुस्कान ने मौका उठाकर शेरोज को धक्का दिया और एक लम्हे के लिए भी ना रुकी। पैर दर पे धक्कों की मदद से मुस्कान शेरोज को कमरे से निकालने में कामयाब हो गई। एक तो वो नशे में धुत था, दूसरा हाथ में पेंसिल फंस गई थी और मुस्कान के यके बाद दीगरे धक्कों से वो संभल ना पाया। मुस्कान ने उसे कमरे से बाहर धक्का दिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। लॉक लगाकर वो दरवाजे के साथ ही बैठती चली गई। इस वक्त वो खौफ से कांप रही थी। इतने फुल प्रूफ हॉस्टल में कोई लड़का कैसे आ सकता है? ये चीज उसे परेशान कर रही थी और इस खौफ में मुस्कान पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन वो सबसे पहले वार्डन के पास गई थी और उससे कंप्लेन की। आपकी गलत फहमी है बेटा, भला यहाँ कोई लड़का कैसे आ सकता है? वार्डन के लहजे की मजबूती ने इसे हिला दिया। कोई बुरा ख्वाब देखा होगा, रात भर जाकर पड़ जो रही थी। वार्डन ने बात बनाई और किचन से बाहर निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ख्वाब नहीं देखा। इसी कश्मकश में सारा दिन गुजरा। वो बहुत परेशान थी। याद ही नहीं आ रहा था कि वो ख्वाब था या हकीकत। वो पढ़ाई पर भी मुकम्मल तवज्जो ना दे पाई तो वापस हॉस्टल आ गई, लेकिन दर हकीकत अब उसे हॉस्टल से डर लग रहा था। उसने आते ही सबसे पहले कमरा लॉक किया और उन्हीं बातों को सोचते सोचते न जाने किस पहर उसकी आंख लग गई। भाई उठ जा, अब तो रात होने वाली है, शाहजर ने शेरोज सिकंदर का कंधा झंझोड़ा। क्या है यार, सोने दे, सिकंदर ने भारी आवाज में कहा। कब तक सोना है? उठ जा, कहीं बाहर चलते हैं। नहीं तो अब बोर हो रहा हूं, शाहजर ने मुंह बनाया। क्या है? सिकंदर ने वह मुश्किल आंखें खोली। यार उठ जा, कहीं बाहर चलते हैं, किरण से आइसक्रीम डेट है आज मेरी, शाहजर ने उसे झंझोड़ा। किरण के नाम पर सिकंदर की सारी नींद उड़ गई। कल रात वाली हसीना का अक्स एकदम आंखों के पर्दों पर लहराया। हम हॉस्टल चलेंगे। सिकंदर को कल रात का सारा वाकया याद आया तो उसने शाहजर से कहा, अब क्या करने जाएंगे हम वहां? यार कहीं बाहर मिलते हैं, हॉस्टल की रौनकों से, शाहजर ने उसे सवाल किया, साथ ही समझाया। पेंसिल वापस करनी है यार मुझे। उसने अपना हाथ शाहजर के सामने किया जहां काले रंग का गहरा डॉट वाज़ेह था। उस वक्त तो हाथ में अकड़ाहट भी महसूस हो रही थी। कल कम बेइज्जती हुई थी जो आज भी चले, शाहजर ने मुंह बनाकर कहा। हम कौन सा पहली दफा जा रहे हैं जो तुम इतना सोच रहे हो? तुम किरण के साथ एंजॉय करना और मैं नया शिकार करूंगा। वैसे भी आजकल अपनी महबूबा की सीट खाली है, कोई नया किराएदार हम शौक से रखेंगे, सिकंदर ने ज़ू मायनियत से कहा तो शाहजर मुस्कुराया। बहुत कमीना है तो, किरण ने झूठ नहीं कहा था, पीस शानदार है। शाहजर की बात पर सिकंदर ने कहकहा लगाया। चल यार तैयार हो, फिर निकलते हैं, वरना किरण आइसक्रीम पार्लर के लिए हॉस्टल से निकल जाएगी
शाहजर ने कहा और तैयार होने अपने कमरे की तरफ चला गया। हेलो मैडम, कैसी हैं? इस वक्त वो दोनों वार्डन के सामने खड़े थे। खाने का एक पैकेट शाहजर ने वार्डन को पकड़ाया। ध्यान किया करो लड़को, कल गलत कमरे में चले गए। वो लड़की साफ सुथरी लड़की है, ऐसे गलत कामों में नहीं है। जो लड़कियां ऐसी होती हैं उनका रूम नंबर तो मैं तुम्हें खुद बता देती हूँ, और तुम गवाह हो, मेरे बताए हुए माल में तुम्हें कभी मायूस नहीं किया। वार्डन ने आंख दबाकर खबासत से कहा। कोई बात हुई है मैडम? वार्डन की बात पर शाहजर ने चौंक कर पूछा। आई थी वो सुबह, कहती है रात कोई लड़का मेरे कमरे में घुस गया था, रो रही थी। मैंने कहा कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। अभी तो मैंने टाल दिया, लेकिन आज उस विंग से गुजरना भी मत जहां उसका कमरा है। मैं शाहजर साईं किरण को पहले पिछले गार्डन में भेज देती हूँ, वार्डन ने कहा, और वो दोनों आगे बढ़ गए, क्योंकि सिकंदर को वार्डन ने नया कमरे का नंबर जो दे दिया था। वो लड़की सिकंदर की पहले भी दोस्त रह चुकी थी, और अब आज सुबह उसने खुद वार्डन से बात की थी कि वो उसकी दोस्ती दोबारा सिकंदर से करा दे। सिकंदर धीमी चाल चलता ऊपर लेफ्ट विंग में आ गया। शाहजर पहले ही पिछले गार्डन की तरफ मुड़ गया था। वो आज फिर उसी कमरे के सामने खड़ा था, और फिर आज मुस्कान की बदनसीबी थी कि कमरे का लॉक लगाना वो भूल गई थी। जब इंसान किसी चीज पर ज्यादा तवज्जो देता है तो गलतियां भी ज्यादा होती हैं, जैसे आज मुस्कान से हुई थी। सारा दिन बार बार लॉक लगा रही थी। अब रात को उसको ऐसा लगा उसने कमरे को लॉक कर लिया है, इसीलिए पुरसकून सी सो रही थी। शहरोज सिकंदर दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ और सोती हुई मुस्कान को देखने लगा। वो बेहद खूबसूरत थी, और उसका प्लस पॉइंट ये था कि हुस्न के साथ उसके पास मासूमियत थी। चेहरा इतना मासूम था कि देखने वाले को प्यार आ जाए, और सिकंदर इसी मासूमियत का दीवाना हो गया। नशे में होने के बावजूद वो चेहरा आंखों में बस गया, और होश में आने पर जो चेहरा सबसे पहले आंखों में उतरा था वो मुस्कान का ही था। अब भी वो महवियत से खड़ा मुस्कान की दराज खमदार पलकें देख रहा था। दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की कि वो अपने होंठों से उन्हें छुए, और वो अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। घुटनों के बल उसके बेड के पास बैठा और आहिस्ता से हाथ आगे बढ़ाया। उसने बड़ी आहिस्तगी से मुस्कान की पलकों को छुआ। बड़ा दिल फरेब लम्स था। सिकंदर सरशार हुआ। उसने उंगली से मुस्कान के चेहरे पर सतर खींची और मुस्कान किस्मसाई, लेकिन सिकंदर ने हाथ नहीं खींचा, और उसकी गुस्ताखी पर मुस्कान की नींद टूटी। अधखुली आंखों से जैसे ही मुस्कान ने सिकंदर को देखा, उसकी चीख निकल गई। सिकंदर ने जल्दी से उसके होंठ पर हाथ रखकर उसकी चीख को रोका। क्या कर रही हो यार? क्या यह जरूरी है कि तुम मेरी आमद की खबर पूरे हॉस्टल को दे दो? सिकंदर आज नशे में नहीं था, लेकिन मुस्कान को देखकर बहक गया था। खौफ से मुस्कान की आंखें फैल गईं, और बड़ी बड़ी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलकर सिकंदर के हाथों को नम कर रहे थे। प्लीज शोर मत मचाना, तुमसे बातें करने आया हूं, सिकंदर ने उल्फत से कहा और आहिस्तगी से हाथ हटाया। मुस्कान ने उसे धक्का दिया और बाहर की तरफ भागी। सिकंदर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामकर करीब किया, और मुस्कान उसके सीने से लगी। छोड़े मुझे, कौन है आप? मुस्कान ने हिचकी लेते पूछा। आपका आशिक। तुमसे मिलकर पहली नजर की मोहब्बत पर यकीन हो गया है मुझे। सिकंदर ने उसकी आंखों पर फूंक मारी, और मुस्कान ने उससे अलग होने की कोशिश की। छोड़े मुझे, मुस्कान ने रोते हुए कहा, और शायद सिकंदर को उस पर तरस आ गया। उसने मुस्कान को छोड़ा, लेकिन पहले उससे वादा लिया। पहले तुम वादा करो कि तुम बाहर नहीं भागोगी, सुकून से मेरी बात सुनोगी। सिकंदर की बात पर मुस्कान ने मजबूर होकर हामी भर ली, और सिकंदर ने उसका हाथ छोड़ दिया। आप कौन हैं? मुस्कान ने रोते हुए पूछा। मैं शहरोज सिकंदर हूं। पहले लोग सिर्फ फ्लर्ट सिकंदर के तौर पर जानते थे, लेकिन अब तुमसे मिलने के बाद लगता है अब लोग मुझे आशिक सिकंदर के तौर पर जानेंगे। सिकंदर ने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा। और अब तो मुझे अपना बताओ, सिकंदर ने उसके बेड पर बैठते सवाल किया।
सिकंदर का अंदाज इतना फ्रैंक था कि ऐसा लग रहा था दोनों बहुत पुराने दोस्त हों। आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर किसी ने आपको देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। हॉस्टल वाले मुझे यहां से निकाल देंगे। मुस्कान ने रोते हुए कहा। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब, तुम्हारी पेंसिल वापस करने आया हूं। उसने जेब से पेंसिल निकालकर मुस्कान की तरफ बढ़ाई। मुस्कान आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वैसे मुझे बहुत दर्द हुआ था कल, सिकंदर ने मुंह बसोर कर कहा, और मुस्कान को यकीन हो गया कि कल उसने ख्वाब नहीं देखा था। और दूसरी बात का जवाब, कोई तुम पर उंगली उठाए मैं वो उंगली ही ना तोड़ दूं। अब तुम सैयद शहरोज सिकंदर की हो और तुम पर उंगली उठाने का मतलब है उंगली मुझ पर उठी है, यानी बिजनेस टाइकॉन सैयद शहरोज सिकंदर पर। उसके लहजे में गुरूर था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज आप जो भी हैं जाएं यहां से। किसी ने देख लिया तो मुझे हॉस्टल से निकाल देंगे। मुस्कान ने भराए हुए लहजे में कहा। ऐसे ही निकाल देंगे? इनकी इतनी जुर्रत नहीं है। और जितने ये पारसा हैं मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारी वो खरांट वार्डन ही हम जैसों को कमरा नंबर बताती है। सिकंदर के इंकशाफ ने मुस्कान को हिलाकर रख दिया। ये मैं कहाँ आ गई हूं? मुस्कान रोते हुए बड़बड़ाई और जमीन पर बैठती चली गई। तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। सिकंदर भी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। आप कौन हैं? मुस्कान ने नम पलकों से देखा। यार इतना बड़ा इंट्रो दिया तो है अभी, सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा। अगर मेरी इज्जत करते हैं तो यहां से जाएं। मुस्कान की बात पर सिकंदर के माथे पर बल पड़े। अभी चला जाता हूं, लेकिन कल सुबह तुम मुझसे मिलने आओगी। मैं तुमसे तसल्ली से बात करना चाहता हूं। मुस्कान की गैर होती हालत देखकर सिकंदर को तरस आ गया था, जब भी यहां से जाने का फैसला किया। मुस्कान ने जल्दी से हामी भर ली और सिकंदर उठकर जाने लगा। वो जाते जाते पलटा। ये अपनी पेंसिल तो ले लो यार, कब तक इसकी हिफाजत करूं? सिकंदर ने पेंसिल उसकी तरफ बढ़ाई और मुस्कान ने जल्दी से थाम ली। वैसे ये तुम्हारे बालों में बड़ी हसीन लगती है। उसने जाते जाते भी रोमांस करना जरूरी समझा। वो जाते जाते फिर पलटा और मुस्कान का भरपूर जायजा लिया। मुस्कान उसके देखने के अंदाज पर घबरा गई। जैसे ही सिकंदर बाहर निकला, मुस्कान ने आगे बढ़कर दरवाजा लॉक किया और दरवाजे के साथ जमीन पर बैठकर रोने लगी। ये सब क्या हो रहा था? ये किस किस्म का हॉस्टल था? इस घनौने काम में सब शामिल थे और उसके बाबा इस हॉस्टल को एक सिक्योर हॉस्टल समझ रहे थे। वो न जाने कितनी देर रोती रही। नींद तो अब आनी नहीं थी। उसे शदीद बुखार हो गया था, लेकिन आज बहुत अहम लैब वर्क होना था, इसीलिए उसका कॉलेज जाना बेहद ज़रूरी था। यहाँ मौजूद हर इंसान से उसका एतबार उठ गया था। अगर बाबा को हॉस्टल चेंज करने का कहती तो वो परेशान हो जाते। इसीलिए उसने सोचा खुद कोशिश करके हॉस्टल ढूंढेगी और बाबा को कह देगी कि यह हॉस्टल कॉलेज से दूर था। उसने हिम्मत की और तैयार होने लगी। मस्टर्ड कलर के कुर्ते पजामे में, मस्टर्ड दुपट्टा ओढ़े, सुर्ख आंखों और चेहरे के साथ वो मुरझाए फूल की तरह लग रही थी। उसने ब्लैक शॉल को सर पर ओढ़ा और बाहर आ गई। वार्डन ने उससे बोलना चाहा, लेकिन वो उन सबसे इतनी बददिल हो गई थी कि आंख उठाकर भी उनकी तरफ ना देखा और बाहर आ गई। रिक्शे वाला पहले से ही इंतजार में खड़ा था। वो जल्दी से बैठी और कॉलेज की तरफ रवाना हो गई। लैब वर्क करके भी वो बाहर आई ही थी कि अजनबी नंबर से मैसेज आया। आप वादा वफा नहीं करती? हमने तो सुना था गांव वाले वादों के पक्के होते हैं। उसने मैसेज पढ़ा और उसके हाथ कांप गए। इनको मेरा नंबर कहां से मिला? वो सोच में पड़ गई। प्लीज आ जाएं, सुबह से इसी रेस्टोरेंट में बैठा हूं जहां कल आपसे मिलने का वादा लिया था। कॉफी पी पी कर आपका इंतजार हो रहा है और अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है। अगर आप ना आई तो मैं आपके कॉलेज या हॉस्टल आ जाऊंगा, वो भी दिन दिहाड़े, बगैर किसी की परवाह किए। सिकंदर ने अपने दिल का हाल बयान करने के साथ साथ धमकी भी दे डाली। मुस्कान वाकई उसकी धमकी से डर गई
और कॉलेज से बाहर आकर रिक्शे वाले को रेस्टोरेंट का पता बताया। बेटा वहां खैरियत से जाना है? रिक्शे वाले अंकल ने पूछा। अंकल वहां आज मेरी दोस्त ने सालगिरह की दावत रखी है, बस 20 मिनट में वापस आ जाऊंगी, अगर ना गई तो नाराज हो जाएगी, उसने अटकते हुए कहा। बस बेटा, ये अमीर और इनके चौंचले, इनकी दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी। रिक्शे वाले अंकल की बात पर उसने सिर्फ सर हिलाया। वो इस वक्त ना सिर्फ खौफजदा थी बल्कि शर्मिंदा भी थी। पहली बार वो किसी नामहरम से मिलने जा रही थी, लेकिन उसकी ये मजबूरी थी, वरना वो शख्स हॉस्टल आ जाता। वो 5 स्टार होटल के आगे रुकी। अंकल और होटल की शान देखकर उसे समझ आया कि रिक्शे वाला क्यों ऐसी बातें कर रहा था। यहाँ दूर दूर तक रिक्शे का नामो निशान तक नहीं था। ये खालिस अमीरों की जगह थी और मुस्कान और रिक्शे वाला उसमें बिल्कुल मिसफिट थे। मरे मरे कदमों से वो अंदर दाखिल हुई तो वहां के चौकीदार से लेकर वेटरों तक ने सबने उसे अजीब नजरों से देखा। वो बौखलाई बौखलाई सी इधर उधर देख रही थी। दोपहर का वक्त था, इसीलिए रश कम था और इस कम रश में भी वो शहरोज सिकंदर को नहीं ढूंढ पाई थी। वो कुर्सी पर बैठा महवियत से इस बदहवास लड़की को देख रहा था और जब वो बिल्कुल रो देने को हो गई तो सैयद शहरोज सिकंदर खुद उठा उसका वेलकम करने के लिए। वो शहरोज सिकंदर जो कभी उठकर किसी का इस्तकबाल नहीं करता था, बल्कि दुनिया उसके आगे पलके बिछाकर उसको खुशामदीद कहती थी, आज वो एक मामूली सी लड़की के वेलकम के लिए खड़ा हुआ था। मुस्कान ने अपनी तरफ बढ़ते शहरोज को देखा तो पहले से ज्यादा खौफजदा हो गई। शहरोज उसके सामने आया और हाथ थामा। मुस्कान उसकी हरकत पर चौंकी, फिर चोर नजरों से इधर उधर देखा और फिर अपना हाथ शहरोज से छुड़ा लिया। मैं खुद चल सकती हूँ, मुस्कान ने धीमे से कहा और शहरोज के माथे पर बढ़ते बलों को नजरअंदाज किया। शहरोज को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खामोशी इख्तियार कर गया। मुस्कान बेजान कदमों से उसकी मायत में टेबल तक आई। ये कॉर्नर की टेबल थी और उस तरफ लाइट्स भी डिम थी। शहरोज आज अनोखी हरकतें कर रहा था। उसने मुस्कान के लिए चेयर खींची और उसे बिठाया, फिर खुद सामने जाकर बैठ गया। तुम्हें बुखार हो रहा है? शहरोज ने फिक्रमंदी से पूछा और मुस्कान के सामने वो अपने गुस्से का इजहार नहीं करना चाहता था। आपने मुझे क्यों बुलाया? मुस्कान ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। पहला सवाल मैंने किया था, शहरोज ने मुस्कुराकर कहा। मुस्कान को देखकर आंखें सैराब हो गई थी। वो इस वक्त मुरझाया हुआ सूरजमुखी का फूल लग रही थी, इसीलिए मूड यकदम खुशगवार हुआ। आपने जो बात करनी है प्लीज जल्दी करें, बाहर रिक्शे वाले अंकल इंतजार कर रहे हैं। सिकंदर ने उस लड़की को नजर भर कर देखा। क्या थी ये? लड़कियां उस पर अपना सब कुछ वार देने को तैयार रहती थी और ये लड़की उससे दूर भागने की कोशिश में लगी है। हालांकि ये वो वाहिद लड़की है जिस पर शहरोज सिकंदर दिल हार बैठा है, जिसे अपने घर की रौनक बनाना चाहता है। जाने मन, जाने जहां, तुम रिक्शे वाले को भेज दो, मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा। पहले मुझे ये बताओ, बुखार की दवाई ली? शहरोज ने नरमी से टेबल पर धरे उसके हाथों को पकड़ा। मुस्कान ने फौरन अपने हाथ खींचे। क्या मसला है आपको? आप क्यों बार बार मुझे टच कर रहे हैं? मुझे नहीं पसंद ये सब। मैं आज यहां इसलिए आई हूं कि आपसे सारी बात क्लियर कर सकूं। प्लीज आप जो भी हैं, मैं ना आपको जानती हूं और ना मुझे जानने में कोई दिलचस्पी है। हॉस्टल वालों ने जो भी किया मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देखें सर, आप प्लीज किसी और लड़की को अप्रोच कर लें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। प्लीज आप मेरा पीछा छोड़ दें और मुझे सुकून से पढ़ने दें। मुस्कान ने बात का आगाज तो गुस्से से गुर्राते हुए किया था, लेकिन अपनी ही बात के अख्तिताम पर उसकी आवाज रुंध गई थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता और जहां तक टच करने की बात है तो तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तो अब टच करूं या बाद में, बात तो एक ही है। सिकंदर को उसकी बात पर गुस्सा आया, इसीलिए उस पर उसका लहजा सर था। शर्म करें, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुस्कान ने गुस्से से कहा। क्या हो गया है यार, तुम मुझे इज़हार का मौका ही नहीं दे रही। पहले मेरी बात तो सुन लो।
शट अप, बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास। सुनिए मिस्टर, आइंदा आपने मेरे ही हॉस्टल में आकर या कॉलेज में मुझे हरास करने की कोशिश की तो आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं आपकी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी और अपने बाबा को भी बताऊंगी। मुस्कान ने अपनी जान में उसे बड़ी धमकी दी थी, लेकिन सिकंदर को उसकी किसी धमकी से फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, उसका शटअप कहना बड़ा नागवार गुजरा था। अगर दोबारा आप मेरे रास्ते में आए तो अच्छा नहीं होगा। मुस्कान ने उंगली उठाकर वार्न किया और अपना बैग थामकर बाहर आ गई। अपने हिसाब से आज वो इस चैप्टर को बंद कराई थी, लेकिन ये चैप्टर उसकी इस हरकत से बंद होने के बजाय हमेशा के लिए खुल गया था। वो तो उठकर चली गई थी, लेकिन शहरोज सिकंदर का पारा हाई हो गया था। उसका बस नहीं चल रहा था हर चीज को तहस नहस कर दे। और फिर बहुत सारे दिन सुकून से गुजर गए। मुस्कान खुश थी कि उसकी धमकी कारामद साबित हुई और वो सिकंदर से पीछा छुड़ा गई। जोरों शोर से पढ़ाई हो रही थी क्योंकि उसके पहले साल के पेपर होने वाले थे। इन बहुत सारे दिनों में वो एक दफा भी घर नहीं गई। हाँ, नए हॉस्टल की तलाश जारी थी और वो रोज रात को अच्छी तरह दरवाजा बंद करके सोती। इन दिनों वो बाबा की तरफ से फिक्रमंद थी। जब भी घर पर बात होती, बाबा का अंदाज बड़ा अजीब होता। एक सद मैरी थी उनके अंदाज में जो मुस्कान को डिस्टर्ब कर रही थी। अम्मी तो हमेशा अच्छे से बात करती थी, लेकिन बाबा की लाडली होने की वजह से वो उनके बदलते रवैये से बहुत परेशान थी। और पेपर होते ही उसका इरादा था छुट्टियों में घर जाएगी और बाबा से अपने लाड उठवाएगी। और फिर बिलाखिर उसके इम्तिहान भी हो गए। आज उसे घर जाना था, लेकिन ड्राइवर को देखकर वो चौंकी। बाबा ने तो उसे खुद आने का वादा किया था। जब वो उसे यहां छोड़कर जा रहे थे तो कहा था, मुस्कान, जब तुम्हारी छुट्टी होगी तो मैं अपनी प्यारी बिटिया को खुद लेने आऊंगा। और अब सिर्फ ड्राइवर आया था। वो खामोशी से गाड़ी में बैठी और सारा सफर बेचैनी से गुजरा। उसकी बेचैनी घर पहुंचते ही दूर हो गई। घर दुल्हन की तरह सज रहा था, हर तरफ गहमा गहमी थी। वो अम्मी के पास गई तो अम्मी हमेशा की तरह मोहब्बत से मिली। उसने इतनी तैयारी की वजह पूछी तो जो खबर अम्मी ने उसे दी, मुस्कान को लगा हवेली की छत उस पर गिर गई हो। कल तुम्हारा निकाह और मेहंदी है, परसों रुखसती। मुझे तो तुम्हारे बाबा की समझ ही नहीं आती कि उन्हें इतनी जल्दी क्यों है। पहले तो कहते थे मैं अपनी मुस्कान की शादी डॉक्टर बनने के बाद करूंगा, और अब ऐसी जल्दी मचाई है कि ना पूछो। तुम्हें बताने से भी मना किया था। अम्मी और ना जाने क्या कुछ कह रही थी, लेकिन मुस्कान साकिन हो गई थी। सदफ, बाबा कहाँ है? मुस्कान ने पास से गुजरती मुलाजमा से पूछा। बड़े साहब मर्दाने में हैं जी, मुलाजमा ने कहा और अपने काम में मसरूफ हो गई। वो अभी तक बाबा से नहीं मिली थी, इसलिए बेचैनी से मर्दाने जाने वाली राहदारी में चक्कर काटने लगी। वो जल्द अज जल्द बाबा से मिलना चाहती थी और 1 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद बिला आखिर उसे बाबा आते दिखाई दिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, मुस्कान ने सर झुकाते कहा, लेकिन आज हमेशा की तरह बाबा ने उसके सर पर हाथ नहीं रखा और ना ही उसे गले लगाकर प्यार किया। बस वालेकुम अस्सलाम कहा और आगे बढ़ गए। बाबा, क्या हुआ है? मुस्कान ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। बाबा के रवैये पर आंखों से आंसू रवां हो गए थे। ये तुम मुझसे ना पूछो, अपने आप से पूछो। तुमने मेरा मान तोड़ दिया मुस्कान, तुमने मेरी कमर झुका दी। मैंने शहर भेजते वक्त तुम्हें डॉक्टर बनाने के ख्वाब देखे थे। ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा भी करोगी। बाबा की आवाज रुंध गई। मैंने क्या किया बाबा? मुस्कान ने बहती आंखों से सवाल किया। आप इस तरह मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? मुस्कान बुरी तरह उलझी थी। अपनी इज्जत बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, बाबा जान ने कहा और आगे की तरफ बढ़े। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे बताएं तो सही कि मुझसे क्या गुनाह हुआ है। मुस्कान ने रोते हुए कहा, मुझे जेब नहीं देता कि तुम्हारे इश्क के किस्से मैं अपने मुंह से सुनाऊं। सीधी तरह शादी कर रहा हूं, जाओ उसके साथ जिंदगी बसर करो।
जिस 2 दिन की मोहब्बत के पीछे तुमने बाप की 21 साल की मोहब्बत को भुला दिया। बाबा जान के लहजे में उसके लिए हकारत थी। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मैं ये शादी नहीं करूंगी, मुस्कान ने सिसकते हुए कहा। क्यों, अब कोई और पसंद आ गया है क्या? अब कितने दिन बाद कोई और मेरी हवेली में तुम्हारे इश्क की दास्तान मुझे सुनाने आएगा? उन्होंने घूर कर मुस्कान से सवाल किया। बाबा, मैं किसी से इश्क नहीं करती, मुस्कान ने टूटे बिखरे लहजे में कहा। आगाहियत ने इस वक्त सोचने समझने की ताकत को मनकूत कर दिया था। बकवास बंद करो अपनी, मैं खुद तुम्हारी सैयद शहरोज सिकंदर के साथ तस्वीरें देखी हैं। मुस्कान, तुमने मेरा मान तोड़ा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। परसों रुखसती के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल ना दिखाना, और शादी से अब अगर तुमने इनकार किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, क्योंकि रोज की जिल्लत से बेहतर मौत है, बाबा ने कहा और आगे बढ़ गए। और कितने पहर मुस्कान वहां साकित खड़ी रही। सैयद शहरोज सिकंदर ने वार कर दिया था और वो बेखबर रही। वो अपनी छोटी सी धमकी पर भरोसा किए बैठी रही और सिकंदर ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। बाबा का उस पर से एतबार खत्म कर दिया था। मेहंदी दोनों की अलग अलग हुई और वो पूरे फंक्शन में साकित आंखों से सब कुछ होता देखती रही। जो कपड़े शहरोज सिकंदर की तरफ से आए थे वो उसी की तरह बेबाक थे। छोटी सी कुर्ती और मेहंदी बड़े से शरारे में भारी दुपट्टा ओढ़े मुस्कान हसीन लग रही थी। उस पर इंतहा उसकी सौगवारी ने फेरी थी। सिकंदर की कजन्स और मॉम इसे देख देख कर निहाल हो रही थी। वो लगी इतनी प्यारी रही थी। और फिर बारात का दिन भी आ गया। मुस्कान की चुप ना टूटी। अम्मी ने कितनी बार बाबा से पूछा कि क्या हुआ जो उनकी शोख चंचल मुस्कान पत्थर की तरह खामोश हो गई है, लेकिन मुस्कान और बाबा ने खामोशी इख्तियार कर ली। आज का ड्रेस भी सिकंदर की तरफ से ही आया था और ब्यूटिशन भी साथ आई थी। मैरून भारी कामदार लहंगा कुर्ती के नाबाजू थे और गला इतना गहरा था कि ब्यूटिशन भी दुपट्टा एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। हैवी ज्वेलरी और मेकअप में आज वो शोला लग रही थी जो सब कुछ भस्म करने के लिए तैयार हो। माशाल्लाह, मेरी मुस्कान तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन ये तुम्हारा लहंगा काफी मुख्तसर है। बेटा, ऐसे अपने अब्बू के सामने ना जाना। मुझे तो ये फिक्र है तुम्हारी पुफियां कितनी बातें बनाएंगी। कल के जोड़े पर भी सबने नुक्ताचीनी की थी। क्या ऐसा भी भाई साहब ने किन लोगों में बेटी ब्याह दी? इतना भी कोई कैसे मॉडर्न हो सकता है कि अपनी ही बहू को आधे अधूरे कपड़ों रस्म के लिए भेजे? अम्मी उसे आगाह कर रही थी और वो साकिन बैठी थी। बेटा, ऐसा करो, ये दुपट्टा इसकी गले में लगा दो, किसी तरह इसको ढक दो, अम्मी ने ब्यूटिशियन से कहा। और उसने जी आंटी कहकर दुपट्टे को मुस्कान के आगे पीछे एडजस्ट कर दिया। अब सिर्फ कुछ बाजू नजर आ रहे थे। बाहर बारात का शोर उठा तो अम्मी बाहर चली गई। मुस्कान ने नजर उठाकर शीशे में ना देखा। जब से बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मुस्कान ने अपनी शक्ल नहीं देखी थी, ऐसे जैसे वो खुद से भी नाराज हो गई हो। और फिर रुखसती का वक्त आया तो बाबा उसकी तरफ आए और सपाट चेहरे के साथ मुस्कान के सर पर हाथ रखा। मुस्कान ने नम पलकें उठाकर उन्हें देखा। कितने शिकवे थे उन आंखों में कि बाबा भी एकदम चौंक गए। मुस्कान ने फौरन पलकें झुका ली और वो सी खामोशी के साथ रुखसत हो गई। गाड़ी में खामोशी का राज था। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो दोनों पिछली सीटों पर बैठे थे। मुस्कान ने चेहरा खिड़की की तरफ किया हुआ था जब उसे अपने हाथ पर सिकंदर का हाथ महसूस हुआ। मुस्कान ने हाथ ना खींचा और ना ही उसका हाथ झटका। वो ऐसे ही खामोश बैठी रही। थक गई हो? सिकंदर ने उसकी तरफ झुककर मध्यम लहजे में सवाल किया, लेकिन मुस्कान ने जवाब नहीं दिया। मुस्कान, सिकंदर ने इतनी चाहत से पुकारा, लेकिन उसकी कोई भी मोहब्बत भरी बात मुस्कान के दिल में शगाफ ना डाल सकी। सिकंदर ने जब मुस्कान को बुद्ध बने देखा तो खामोशी इख्तियार कर ली। वो जानता था थोड़ी दो बहुत नाराजगी तो मुस्कान दिखाएगी ही, लेकिन वो ये नहीं जानता था
कि आज वो मुस्कान को हार गया है। लहंगे का भारी ब्रोकेट एकदम घुटने वाले वजन की तरह महसूस हो रहा था। हर एक सुनहरी धागा इस वक्त मुस्कान के वजूद पर अपने वजन का बोझ बढ़ा गया था। बाहर जश्न की गोलियों की गूंज आखिरकार मध्यम हो गई, जिसकी जगह एक भारी मुतवक्के खामोशी ने ले ली। वो कमरे में दाखिल हुआ। गुलाब के पानी की खुशबू और कुछ तेज, कुछ नाआशना खुशबुओं ने उसका इस्तकबाल किया। वो खूबसूरत था, ये दुनिया कहती थी, लेकिन आज उसका सामना दिलकशी से होना था। मुस्कान हसीन ही नहीं, दिलकश भी थी। स्याह आंखें जो कभी मुस्कान से बराह रास्त नहीं मिली थी। जब भी वो मुस्कान को देखता तो वो नजरें झुका देती। वो मलकियत के एहसास के साथ कमरे में दाखिल हुआ। आखिरकार, सिकंदर ने कहा। उसकी आवाज़ में हल्की हल्की हलचल थी जो कशीदा हवा में जज्ब हो रही थी। सिकंदर ने उसका हाथ थामा। मुस्कान का लम्स हैरत अंगेज तौर पर नरम था। सिकंदर के लम्स ने मुस्कान के अंदर गुस्से की लहर दौड़ा दी। मुस्कान ने अपनी नजरें अपनी हथेलियों पर मेहंदी के पेचीदा नमूनों पर जमाए रखी। मेहंदी के ये दाग उसकी सुनहरी जिल्द के बिल्कुल बरक्स थे। वो खूबसूरती से सजे हुए बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। उसके नीचे रेशमी चादरें सरसराई थीं, खामोशी फैली हुई थी और कमरे में अजीब सी बेचैनी थी। मुस्कान उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर सकती थी। क्या तुम ठीक हो? सिकंदर ने पूछा। किसी चीज का इशारा था सिकंदर के लहजे में जिसे वो समझ ना सकी। तशवीश, बेसब्री। उसने इस बात में सर हिलाया। एक छोटी सी हरकत जो उनके होंठों से झूठ की तरह निकल गई। वो क्या कह सकती थी कि उसके वजूद का हर हिस्सा सिकंदर के खिलाफ चीख रहा है। उसे इस सुनहरी पिंजरे में कैद किया गया था कि खुशी की मौसीकी और नेक तमन्नाओं ने मायूसी का जालमाना मजाक उड़ाया था। सिकंदर ने उसकी ठोड़ी को आहिस्ता से उठाने के लिए दोबारा हाथ बढ़ाया और उसे अपनी आंखों से मिलने पर मजबूर किया। सिकंदर की निगाहें कुछ तलाश कर रही थी और एक लम्हे के लिए मुस्कान ने उनके अंदर कुछ झिलमिलाता हुआ देखा। बेचैनी का साया, शायद कोई सवाल भी, लेकिन फिर ये बेचैनी खत्म हो गई और उसकी जगह एक मानूस अज़्म ने ले ली। हमारी शादी हो गई है मुस्कान। उसने अपनी आवाज़ मजबूत करते दलील की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अब ये हमारी जिंदगी है। मुस्कान का दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था, पिंजरे में फंसा हुआ एक पागल परिंदा। हमारी जिंदगी? मुस्कान ने तलखी से सोचा। आपकी, शायद। सिकंदर ने मुस्कान की निगाहों को अपनी निगाहों से मिलने पर मजबूर किया। अंदर की हंगामा खेजी खामोश चीख जो उसके गले में फंस गई, लेकिन मुस्कान की आंखें पढ़ने के काबिल नहीं रही। एक स्याह आईना था जो सिर्फ उसकी अपने खौफ की अक्कासी कर रहा था और सिकंदर ने उस वक्त उसकी आंखों के हर जज्बे को इग्नोर किया था और अपने मुंह जोर जज्बात का इजहार किया। मुस्कान उसके मुंह जोर जज्बात के आगे बेबस रही। ये तुमने इतना लाइट कलर क्यों पहना है? तुम्हें तो आज कोई शोख रंग पहनना चाहिए था, मेरे जज्बात की तरह। सिकंदर ने मुस्कान का हाथ थामकर उसे अपने करीब किया जो वो सोफे पर बैठी थी। सिकंदर की बात पर उसने निगाहें उठाकर इसकी तरफ ना देखा और यही चीज सिकंदर को डिस्टर्ब कर रही थी। मुस्कान का सर दो सपाट अंदाज। सिकंदर की किसी शौक शरारत पर, किसी मोहब्बत भरे जुमले पर भी मुस्कान के चेहरे के रंग नहीं बदलते थे। रात भी जब वो उसके करीब हुआ तो न जाने मुस्कान किन वादियों में खो गई। आंखें बंद किए वो सिकंदर से गाफिल थी। सिकंदर को अब उसकी इस खामोशी से डर लग रहा था। मुस्कान, प्लीज मेरी तरफ देखो, सिकंदर ने बेबसी से कहा। मुस्कान ने निगाहें नहीं उठाई और सिकंदर बेचैन हुआ। नाराज हो मुझसे? सिकंदर ने उसका हाथ दबाते पूछा। तुमने वो कंगन भी नहीं पहने जो मैंने तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत से बनवाए थे। सिकंदर ने उसके हाथ को अपने अंगूठे से रब किया। मुस्कान अभी कुछ कहती कि बाहर दरवाजा नॉक हुआ और सिकंदर उससे दूर हुआ। भाई, मुस्कान भाभी के घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं, सिकंदर की कजन ने इत्तला दी और वो दोनों बाहर की तरफ चले गए। मुस्कान बाबा से नहीं मिली,
نہ انکی طرف سے ملاقات کا پیغام آیا اور نہ ہی مسکان نے ایسی کوئی ضد کی، اور یہ بات امی کو پریشان کر گئی۔ اور بالکل یہی حرکت ولیمے میں ہوئی۔ وہ اور سکندر ساتھ ساتھ کھڑے تھے جب اس نے بابا کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ سکندر، آپ پلیز بابا سے وہی جا کر ملے، بابا کو یہاں مت آنے دے، مسکان نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا مسکان، تم ٹھیک ہو؟ سکندر نے پوچھا۔ جی، آپ پلیز نیچے جا کر ان سے مل لیں، مسکان نے پھر سے کہا۔ تم نہیں ملو گی انکل سے؟ سکندر نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ مسکان کی آنکھ سے آنسو گرا، جسے اس نے فوراً صاف کر لیا اور چہرے کا رخ موڑ لیا۔ سکندر اس کی بات پر چونکا اور خاموشی سے نیچے اتر گیا۔ وہ انکل سے ملا اور وہ واپس باہر چلے گئے۔ نہ انہوں نے مسکان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ہم مسکان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، امی نے مسکان کو پیار کرتے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی بہن، سکندر کی ماما نے نرمی سے کہا۔ اس وقت مسکان اور سکندر سٹیج پر اکیلے تھے۔ سکندر، مسکان نے مدھم لہجے میں کہا، انداز اب بھی سپاٹ تھا۔ سکندر نے اس کی طرف والہانہ نظروں سے دیکھتے کہا۔ مسکان کا سکندر کہنا اس کے من ہی من میں بے شمار جذبوں کو پیدا کرتا تھا۔ آپ امی کو منع کر دیں کہ میں رسم کے مطابق ان کے ساتھ گاؤں نہیں جا سکتی، مسکان نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اتنی محبت ہو گئی ہے مجھ سے؟ سکندر نے شوخی سے کہا۔ میرے اندر آپ کے نام کی اتنی نفرت ہے کہ اگر آپ وہ دیکھ لیں تو شاید آپ مر ہی جائیں، مسکان پھنکاری، اور اس کے لہجے کی نفرت پر سکندر ششدر رہ گیا۔ مسکان، تم نے انکل آنٹی کے ساتھ جانے سے انکار کیوں کیا؟ اس وقت وہ دونوں بالکنی میں کھڑے تھے۔ مسکان سامنے گارڈن کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سکندر اس کے جذبات سے آری چہرے کو۔ ولیمے کے بعد اس کو نہ بھیجنے کی ساری ذمہ داری سکندر نے اپنے سر لے لی۔ شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا، مسکان ایک دفعہ بھی گاؤں نہیں گئی تھی۔ مسکان کا انداز سرد اور سپاٹ تھا، نہ وہ کسی سے بولتی، اگر کوئی اس سے بات کرتا تو وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ اس نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سکندر نے 1-2 بار اسے کالج جانے کا پوچھا تو اس نے کہا، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ اس مختصر جواب کے بعد مسکان نے اس ٹاپک پر بات نہیں کی۔ اس کا یہ انداز ہر گزرتے دن کے ساتھ سکندر کو پریشان کر رہا تھا۔ ویسے ہی مسکان نے بھی مختصر جواب دیا۔ مسکان، سکندر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں شادی کی پہلی رات تم سے اپنے کیے پر ہر عمل کی معافی مانگ چکا ہوں۔ میں نے تمہیں خود بتایا کہ میں تمہارے گاؤں گیا تھا اور انکل سے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہوٹل میں میں نے چپکے سے اپنی اور تمہاری کچھ تصویریں لی تھیں۔ انکل کو وہی دکھا کر اپنی بات کو سچ ثابت کیا۔ میرا ارادہ غلط نہیں تھا، میں بس تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تم وہ لڑکی ہو جس نے مجھے محبت کا مطلب سمجھایا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے یہ کوشش کی۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے میں نے تمہارا وجود پا لیا، لیکن تمہاری روح کھو دی۔ تم میرے پاس ہو کر بھی مجھ سے بہت دور نظر آتی ہو، سکندر نے بے بسی سے کہا۔ مجھے آپ سے نفرت ہے سکندر۔ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہوں۔ کس چیز کو آپ محبت کہتے ہیں؟ آپ نے تو محبت کی، لیکن میرا کیا؟ اس محبت کی جھینا جھپٹی میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنے بابا کو، اپنے خوابوں کو۔ مسکان پہلی بار اس کے سامنے کھلی تھی۔ یہ پہلا اتنا بڑا جملہ تھا جو اس 1 ماہ میں مسکان نے بول دیا۔ میرے بابا مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ پتہ ہے انہوں نے مجھے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، مسکان، مجھے دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ مسکان نے سسکتے ہوئے کہا، میں ہار گئی سکندر اور آپ جیت گئے، لیکن میری نفرت ہمیشہ جیتے گی۔ آپ کے ہر جذبے، ہر اظہار پر میری نفرت کا پلڑا بھاری رہے گا، مسکان نے نفرت سے کہا اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ تم نے پڑھائی چھوڑ دی ہے؟ بابا جان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آج انہونی ہوئی تھی،
बाबा जान खुद चलकर उसके घर आए थे। वो जो काले सूट में लॉन में वॉक कर रही थी, बाबा को पोर्च में देखकर ठुठक गई, लेकिन कदम उनकी तरफ बढ़ने से गुरेज कर रहे थे, कहीं वो नफरत से मुंह ही ना फेर ले। उनके साथ सिकंदर भी था। उसे अपनी जगह जमा देखकर बाबा जान खुद चलकर उसके पास आए। अंकल आंटी किसी पार्टी में गए हुए थे। आज वो सुबह से घर में अकेली थी। सिकंदर भी न जाने कल का कहाँ गया हुआ था। सलाम दुआ करना भूल गई हो मुस्कान? बाबा के अंदाज में पहले वाली शफकत तो थी, लेकिन साथ सख्ती भी थी। सॉरी बाबा, अस्सलाम वालेकुम, उसने धीमे से कहा। हलक में बनने वाले आंसुओं के गोले को अंदर उतारा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और शफकत से इसके सर पर हाथ रखा। वो उन्हें लिए अंदर आ गई। अब बाबा उसके सामने बैठे उससे सवाल कर रहे थे। जी बाबा, उसने सर झुकाकर जवाब दिया। अंदाज मुजरिमों वाला था। ये मुजरिमों की तरह मेरे सामने मत बैठो, सर उठाकर जवाब दो। बाबा ने फिर सरजनिश की। जी बाबा, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, मुस्कान ने हिचकिचाते हुए कहा। क्यों? सवाल हुआ था। सिकंदर सामने बैठा दोनों बाप बेटी को देख रहा था। अब पढ़ने का दिल नहीं करता बाबा। मैं तो अपने बाबा का ख्वाब पूरा कर रही थी। जब बाबा ने मुंह मोड़ा तो फिर मैंने भी सब चीजों से मुंह मोड़ लिया। मुस्कान ने ढके छुपे लफ्जों में भराई हुई आवाज में शिकवा किया। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? बाबा ने नरूठे लहजे में कहा। मुस्कान ने हैरान नजरों से देखा। आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया बाबा। मैं तो ऐसी नहीं थी कि कोई भी आए और आपको मेरे बारे में कुछ गलत कहे और आप उस पर यकीन कर लें। मुस्कान ने उनके गले लगकर सिसकते हुए कहा। सिकंदर अच्छा लड़का है। अगर मैं तुम्हारे लिए खुद भी कोई लड़का ढूंढता तो सिकंदर जैसा शानदार लड़का ना मिल पाता। इसने तुम्हारी मोहब्बत के पीछे मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। बेटे, गलती तो मेरी है कि मैंने तुम पर, अपनी परवरिश पर शक किया। मुझे माफ कर दो, और मेरे साथ सिकंदर को भी। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। बाबा ने नम लहजे में कहा। आप ऐसी बातें ना करें बाबा, आप माफी ना मांगे। मुस्कान ने मोहब्बत से कहा। सिकंदर को भी माफ कर दो। बाबा की फरमाइश पर मुस्कान ने सिकंदर को देखा। दोनों की नजरें मिली और मुस्कान ने नजरें फेर ली। सिकंदर पर उसकी इस हरकत ने उदासी के सांव को बढ़ा दिया। वो कॉलेज से वापस आई तो आज सिकंदर घर पर ही था। उसे तेज बुखार हो रहा था। आप कब आए? मुस्कान ने पूछा। 12 बजे आ गया था, तबीयत ठीक नहीं थी, सिकंदर ने नकाहत से चूर लहजे में कहा। मुस्कान ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर जर्दियां घुली हुई थी। पता नहीं क्यों मुस्कान को उस पर तरस आ गया। सच तो ये था कि वो अब तक उसे माफ नहीं कर सकी थी। हालांकि बाबा ने उसे बहुत समझाया था और कहा था कि वो यही समझे कि ये शादी बाबा की पसंद की है, लेकिन फिर भी सिकंदर की तरफ से उसका दिल साफ नहीं हुआ था। और अब सिकंदर को इस तरह लागर देखकर न जाने क्यों उसके दिल की बर्फ पिघल गई थी। याद रहा था तो बस ये कि सिकंदर बीमार है और अगर इसे कुछ हो गया तो उसकी सबसे कीमती चीज कहीं खो जाएगी। आपने डॉक्टर को चेक कराया? मुस्कान के सवाल पर सिकंदर ने बमुश्किल आंखें खोली। नहीं, मुख्तसर जवाब। हद है वैसे, इतना तेज बुखार है और आप ऐसे ही पड़े हैं। उठें, डॉक्टर के चलते हैं, मुस्कान ने झुंझलाकर कहा। अच्छा है मर जाऊं, तुम्हारी जान छूट जाएगी। सिकंदर ने अजियत से मुस्कुराया। क्या ये जरूरी है कि आप हर दफा वो बात करें जिससे मेरा दिल दुखे? मुस्कान ने उसका गिरेबान थाम कर पूछा। चेहरे पर गुस्सा वाज़ेह था। सिकंदर ने हैरत से उसके बदले तेवर देखे। ऐसे मत देखें, मुस्कान ने रनूठेपन से कहा। अब क्या ये जरूरी है कि मुंह से कहूं कि मैंने आपको माफ कर दिया? मैं आपके साथ पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहती हूं। कई महीनों की कदूरत यकदम दूर हो गई। पता नहीं क्यों वो उसे बीमार देखकर सब भूल गई थी। याद रहा तो बस ये कि सिकंदर बीमार है और अगर इसे कुछ हो गया तो उसकी कीमती चीज खो जाएगी। फिर से कहो मुस्कान। ये लफ्ज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे।
सिकंदर यकदम उठकर बैठा और मुस्कान को कंधों से थाम कर पूछा। इतने में ही सिकंदर का सांस बुरी तरह फूल गया। क्या कर रहे हैं? अपनी हालत देखें, सुकून से लेट जाएं, मैं खुद दवाई देती हूं, मुस्कान ने कहा और उसे लेटाया। मुस्कान ने उसे दवा दी और ठंडे पानी की पट्टियां की। उसकी तवज्जो का नतीजा था कि सिकंदर का बुखार 1 घंटे में उतर गया। सिकंदर, मुस्कान ने उसको सूप पिलाते कहा। नजरें हनूस झुकी हुई थी। आंखों में देखकर बात करो। सिकंदर ने मोहब्बत पाश नजरों से उसका चेहरा ऊपर किया। आप अब भी हॉस्टल में लड़कियों के रूम में जाते हैं? मुस्कान ने झिझकते हुए पूछा। पहले जाता था, लेकिन जब से तुम मिली हो मैंने फ्लर्ट छोड़ दिया। मुस्कान, तुमने तो भटके हुए को राह दिखाई है। मेरा मरकज तुम हो। अब तो जिंदगी सिर्फ तुम्हारे गिर्द घूम रही है। मैं नहीं जानता दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की भी है। सिकंदर के इतने वालेहाना इजहार पर मुस्कान की आंखें नम हो गईं। कभी बदलिएगा नहीं सिकंदर, सारी जिंदगी मुझसे ऐसे ही मोहब्बत कीजिएगा। मैं जरा बेएतबार हूं, अगर कभी गुमराह हो जाऊं और एतबार की डोर कच्ची कर बैठूं तो भी आप इसी तरह मेरे साथ रहिएगा। मेरी किसी भी जिद के बावजूद मुझे छोड़ मत दीजिएगा, उसने भराते हुए लहजे में कहा। जिनकी मोहब्बत मुझे मिलती है, अगर वो मुझसे बेएतबार हो जाएं तो मैं तो टूट ही जाऊंगी ना। बाबा की बेएतबारी मुझे ऐसे जख्म दे गई जो आज भी सोचती हूं तो दिल दुख जाता है। और अगर कभी कोई आपको मेरी तरफ से बेएतबार करे तो मुझ पर यकीन कीजिएगा। उसकी आवाज रुंध गई और सिकंदर को शर्मिंदगी हुई कि उसने एक नाजुक सी लड़की को कितना डरा दिया था। बेएतबारी का खौफ अब उसके अंदर कुंडली मारे बैठा था, लेकिन वो जानता था ये खौफ वो अपने अमल और बेहद मोहब्बत से दूर कर देगा। आगे जिंदगी खूबसूरत थी क्योंकि उसको मुस्कान का साथ जो मिल गया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।